Okay, so we start with the lakes, wetlands, and the social management framework. Recently, Ministry of Environment, Forest and Climate Change released environmental and social management framework in public domain. ठीक है, कौन सा फ्रेमवर्क? एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन पब्लिक डोमेन. अब द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट. तो कौन फंड कर रहा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनकोर. और एनकोर क्या है? इट इज़ एनहांसिंग कोस्टल एंड ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. which aims to strengthen integrated coastal zone management program in all coastal states and union territories of India. The ESMF, that is in the environmental and social management framework, is a part. It has been prepared with an objective to manage the social and environment impacts through appropriate measures during the planning, design, construction and operation of various sub-projects of NCORE. It's a tool for NCORE program to screen the sub-projects, to categorize them based on defined criteria, and to decide on how to manage these using either full-fledged ESIAs, that is environmental and social impact assessment, and ESMPs, that is environmental and social management plan. Okay, now the Society of Integrated Coastal Management, SICOM, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, is the National Project Management Unit for ICZMP and NCORE programs. What is ICZMP? Coastal Zone Management Plan. ठीक है? Okay. Now the next topic is coral management or coral restoration. So the thing is that the Zoological Survey of India, with the help of Gujarat's Forest Department, is attempting for the first time to a process to restore the coral reefs using the bio-rock technology. So what is bio-rock technology? We'll come to it. A bio-rock structure was installed 1 nautical mile off the Mithapur coast in the Gulf of Kutch. So bio-rock structure was installed 1 nautical mile off the Mithapur coast in the Gulf of Kutch. About bio-rock technology, bio-rock is the name given to the substance formed by electroaccumulation of minerals dissolved in sea water on steel structures that are lowered onto the seabed and are connected to a power source. I will repeat this. Biorock is the name given to the substance formed, okay, by electroaccumulation of minerals dissolved in seawater on steel structures that are lowered onto the seabed and are connected to a power source. The technology works by passing a small amount of electrical current through electrodes in the water. When a positively charged anode and a negatively charged cathode are placed on the sea floor with an electric current flowing between them, the calcium ions, they combine with the carbonate ions and adhere to the structure at the cathode. This results in calcium carbonate formation. The coral larvae adhere to the calcium carbonate and grow quickly. Now the fragments of broken corals are tied to the biorock structure, where they are able to grow at least 4 to 6 times faster than their actual growth, as they need not spend their energy in building their own calcium carbonate skeletons. Next up we have coral reefs. Now coral reefs are one of the most biologically diverse marine ecosystem on the earth. Ecologically तो सी सबसे ज़्यादा क्या है? Biologically diverse है marine ecosystem on the earth. Ecologically coral reefs are important because they are counterpart to the tropical rainforest. ठीक है, जैसे tropical rainforest में diversity है, वैसे ही coral reefs में diversity है in terms of species diversity and biological productivity in the ocean. Coral reefs enables the formation of associated ecosystem which allow the formation of essential habitats, fisheries and livelihoods. So coral reef क्या करता है? Enables the formation of associated ecosystems. अच्छा, जो associated ecosystems है उसको बनाने में coral reef enable करेगा which allow the formation of essential habitats, fisheries and livelihoods. ठीक है.
In addition, coral reefs are climatologically important because they provide an accurate long-term record of the climate change. Very important. Do they provide an accurate long-term record of the climate change? Yes, they do. कहाँ से सबसे बढ़िया, सबसे accurate हमें long-term record कहाँ से पता चल रहा है कि climate change हुआ है कि नहीं हुआ? Coral reef से. And they help in extending our knowledge of seasonal climate variability in many remote tropical oceans. In India, coral reefs are present in the areas of Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Malvan in Maharashtra, Angria Bank in Maharashtra, and Netrani Island in Karnataka, etc. Now, recently, if you see, a new coral species have been discovered in the Angria Bank, so it becomes important. Where is Angria Bank? It's in Maharashtra, and new coral species have been discovered here. Now it's a shallow submerged atoll island, okay, located 100 miles off the western coast of India. Obviously Maharashtra में coast तो west में ही है ना. Peculiarity of the Angria corals is that it is in the middle of the sea, unlike other corals which are either coastal or island corals. Okay, so this one is in the middle of the sea. So which one are we talking about? Angria. Where is it? Maharashtra. 100 miles ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड व्हाट इज़ द पेक्युलियरिटी? सी के बीचों बीच मिल रही है. एंड द अदर्स यू यूजुअली फाइंड, या तो आइलैंड के लिए जाते हैं ना कोरल देखने, टू डू स्कूप एंड ऑल, यू इधर गो टू एन आइलैंड और यू नो इट्स नियर द कोस्ट. बट दिस इज़ अ पेक्युलियर वन विच इज़ राइट in the middle of the sea. Okay, next up we have the major threats for corals. Now what are the major threats for corals? It's two things, either natural ones, I mean broad classification is natural and anthropogenic. Anthropogenic means which is caused by the humans. Natural में क्या आएगा? Environmental temperature, environmental यानी कि टेम्परेचर, फिर सेडिमेंट डेपोजिशन हो सकता है ना ऊपर, क्योंकि यू नो कोरल्स नीड वेरी क्लीन वाटर. अब अगर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो कोरल्स नहीं बनेंगे. सैलिनिटी, पीएच, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द कोरल्स. एंड एंथ्रोपोजेनिक विल बी माइनिंग, बॉटम फिशिंग, टूरिज्म, पोल्यूशन एट्सेट्रा. ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर द कोरल रेस्टोरेशन? सबसे पहले ग्लोबल मेजर्स की बात करते हैं. चैप्टर 17 ऑफ एजेंडा 21 specifically addresses the protection and sustainable development of the marine and the marine and the coastal environment within the context of the United Nations Convention on the Laws of Sea, that is UN clause. तो ये क्या है? Agenda 21. ये मतलब it was for the 21st century. They made an agenda about sustainable development and everything. So chapter 17 says it specifically addresses the protection and sustainable development of the marine and the coastal environment. वो बोलते हैं specifically marine और coastal को भी protect करो within the context of UN clause, क्योंकि you know the laws of the sea, like there are areas which do not belong to any country, so even those need to be protected. Now, International Coral Reef Initiative is another one. So, Chapter 17 of Agenda 21 is one global measure, then International Coral Reef Initiative. It's an informal partnership between the nations and the organizations which strives to preserve coral reefs and related ecosystem around the world. ठीक है, तो कोई पूछे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव क्या है? इट्स इंटर गवर्नमेंटल नहीं, इट्स अ फॉर्मल पार्टनरशिप नहीं, इनफॉर्मल पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है. अब यूएन एनवायरनमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो UN Environment World Conservation Monitoring Center, it works with the scientists and the policymakers worldwide to place biodiversity at the heart of the environment and development decision making to enable enlightened choices for people and the planet. ठीक है, मतलब it's a broad thing जिसमें कोरल भी आ रहे हैं. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट World Conservation Monitoring Center works with the scientists and the policymakers worldwide to place biodiversity at the heart of the environment and development decision making to enable enlightened choices for people and the planet. Now, what are the measures taken in India per se? So, Government of India has taken steps to protect its coral reef under the Coastal Ocean Monitoring and Prediction System. We have something called COMAPS, okay, Coastal Monitoring, Coastal Ocean Monitoring and Prediction System. Land ocean interaction in the coastal zones, like LOICZ, and Integrated Coastal and Marine Area Management, ICMAM. So government of, that's one point. So क्या क्या? COMAPS,
को ICZ, लो ICZ, लैंड ओशन, तो पहले क्या है कोस्टल ओशन, ठीक है, मतलब कोस्ट के पास, तो कोस्टल ओशन उधर मॉनिटरिंग करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। फिर लैंड में जो ओशन इंटरैक्शंस हैं इन कोस्टल जोन्स, कोस्ट में भी लैंड होता है ना, तो लैंड में ओशन इंटरैक्शंस इन कोस्टल जोन्स विच इज़ LOICZ एंड इंटीग्रेटेड, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, क्या, कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट के प्लान हैं, ठीक है। सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, एंड हैज सेट अप नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हमारा कोस्टल मैनेजमेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हमने बनाए हैं और इसके अंदर हमने एक बॉडी सेटअप करी है जिसका नाम है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द कोरल रीफ्स, ठीक है, ये पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करेगी कोरल रीफ्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम, so a service initiated from INCOIS uses a satellite derived sea surface temperature in order to assess the thermal stress accumulated in the coral environs. Now coral environment में बहुत सारे thermal stress accumulate हो जाते हैं, ठीक है, तो हमने कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम की एक सर्विस है विच वॉज इनिशिएटेड बाय INCOIS, ओके, विल नो व्हाट इज INCOIS। इट यूजेस अ सैटेलाइट डिराइव, तो सैटेलाइट से ही देखते हैं, सैटेलाइट डिराइव सी सर्फेस टेम्परेचर इन ऑर्डर टू असेस, सोचो मतलब सैटेलाइट से सी सर्फेस का टेम्परेचर भी पता चल रहा है, तो सैटेलाइट से सी सर्फेस का टेम्परेचर पता चल रहा है, फिर उससे ये लोग क्या असेस कर रहे हैं, in order to assess the thermal stress accumulated in the coral environs, okay। Now the coral reef, तो उससे पता चल जाएगा ना thermal stress है, तो now we need to take some action and all. Now coral reef recovery project is a joint venture of the Wildlife Trust of India, ठीक है, Wildlife Institute नहीं है, Wildlife Trust of India, इस पे ध्यान दो, ये confusion हो जाती है, Wildlife Trust of India और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, which is supported by the Tata Chemicals Limited, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मतलब गुजरात में करना होगा इनको कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट, तो वही है। Then Reef Watch. Reef Watch is actually an NGO. So please remember, Reef Watch is an NGO that has taken up two projects. That is Reef Build and Reef Grow. Okay, so Reef Build and Reef Grow to conserve. So it's actually rebuild and regrow. But about what should rebuild, regrow the coral reef to conserve the reef. So rebuild involves the restoring and the rehabilitation of the coral reefs at the Andamans. तो rebuild जो हम कर रहे हैं वो Andamans में कर रहे हैं by rescuing the naturally broken coral fragments that would otherwise get smothered in the sand and die and reattaching what? Reattaching them to the robust substratum. Okay, so we want to rebuild in Andamans whatever coral reefs they've broken, the coral fragments that would have otherwise gotten smothered in the sand and die, we will reattach them to the robust substratum. Now Palau is the first country to ban reef toxic sunscreen. Okay, तो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं ना, सनस्क्रीन होता है, वैसे सन क्रीम है, चलो। सो पलाऊ इज़ फर्स्ट कंट्री टू बैन व्हाट, रीफ टॉक्सिक सन क्रीम, ओके। सो Palau, which is located in the western Pacific Ocean, okay, imagine the Pacific Ocean now towards the west of the Pacific Ocean. So what will be the western Pacific Ocean, towards US या फिर towards Japan, towards Japan, okay। So Palau, located in the western Pacific Ocean, has become the first country to ban sunscreen cream that is harmful to the corals and the sea life. An ingredient in the sunscreen which is oxybenzone, okay, so oxybenzone is particularly harmful. We should not use any product which is containing oxybenzone. Why? Because it's really harmful for the coral reefs. So according to the International Coral Reef Foundation, the banned chemicals can cause corals to become more susceptible to coral bleaching. So you see, corals are more susceptible to coral bleaching. In that case, they damage the DNA of the coral and they deform and kill the juvenile corals. So that's bad, right? So which countries banned it? Palau. What steps have been taken by our government so far? So in India, what steps have been taken? So there is COMAPS, LOICZ, ICMAM, okay. COMAPS is what? Coastal Ocean Management and Prediction, Monitoring and Prediction System, COMAPS. फिर LOICZ क्या था? Land Ocean क्या है? Interaction, Land Ocean Interaction in coastal zones, ठीक है। फिर
ICMAM क्या है? इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड मरीन मैनेजमेंट. ओके, सो इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये 3 चीज़ें पहले पॉइंट में आ रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं. दूसरा था फिर हमने कुछ नोटिफाइड क्या किया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स भी हमने नोटिफाई किया. उसके अंदर हमने नेशनल और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है. ठीक है, तो वो सेकेंड चीज़ है, वो हमें कोरल रीफ्स के लिए किया हमने. फिर हमने कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम भी एक सर्विस जो इनकॉइस ने बनाई है, उससे हम सी सरफेस टेम्परेचर डिटर्मिन करते हैं और असेस करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस जो कि कोरल एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है, तो हमने वो भी किया. फिर हमने कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट भी किए हैं. अब ये जो कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट है, कोरल रीफ, तो अभी क्या कोमैप्स वगैरह गवर्नमेंट, फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी पूरा गवर्नमेंट, स्टेट, और उसका अब सिर्फ ये गुजरात स्पेसिफिक वर्ल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल्स एंड तीसरा कौन सा था, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन तीनों ने मिलकर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट बनाया है. ठीक है, अब एक NGO की बात कर लो जिसका नाम है रीफ वॉच. वो क्या कहती है? वो कहती है रीबिल्ड करेंगे और रीबिल्ड करेंगे और क्या करेंगे, रीग्रो करेंगे. तो उसने कहाँ पे स्टार्ट किया है? एक तो अंडमान्स में. ठीक है, उसके अलावा देर इज़ अब एक अनरिलेटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि पलाऊ हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने सनस्क्रीन को बैन किया है. और उसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली कोरल ब्लीचिंग को इन्हांस कर रहा है एंड उनका DNA से जो है उसको भी ख़राब कर रहा है और या डैमेज कर रहा है या फिर डिफॉर्म एंड किल कर रहा है जुवेनाइल कोरल्स को भी, यंग जो छोटे छोटे कोरल्स हैं उनको भी. तो ये कौन सा केमिकल है? ऑक्सीबेंजोन. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया. Now, Ramsar Convention has declared 10 more wetlands in India as sites of international importance. ठीक है, तो पहले कितने थे? 27 थे, अब कितने हो गए? 37. 26 थे बहुत टाइम तक, फिर 27 कौन सा हुआ? ईस्टर्न या फिर इंडियन पार्ट ऑफ द सुंदरबंस, वो 27 था. अब उसके बाद भी 10 और आ गए हैं. ठीक है, तो पहले ऊपर ऊपर से कहाँ कहाँ पे आए हैं? पंजाब वाले, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र. ठीक है, 3 जगह से इन्होंने एडिशन करे हैं. तो जस्ट हैव अ लुक. तो पंजाब में यार देखो, भाखड़ा नंगल डैम सुना है सबने? तो उधर कोई नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो तो पता ही है ना कि सतलुज पे है और वो पंजाब में ही ज़्यादातर फ्लो कर रही है. तो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब से लिया है. फिर नंगल लिया है, उसके साथ साथ कोई और भी रिवर टाइप ले लो तो वो ब्यास है. ठीक है, सो ब्यास वेटलैंड साइट और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों हो गए अपने पंजाब से. उसके अलावा एक और है गुरदासपुर में बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है केशोपुर. ठीक है, केशोपुर वाइल्ड लाइफ. तो अब ये याद रखना पड़ेगा क्या क्या? नंगल, ब्यास और केशोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, केशोपुर वेटलैंड, ब्यास वेटलैंड और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इज दिस क्लियर? दीज 3 हैव बीन टेकन फ्रॉम पंजाब. कहाँ? रामसर साइट में इंक्लूड हो गए. अब उत्तर प्रदेश में कौन से? उत्तर प्रदेश में देयर समथिंग कॉल्ड एज, अब इधर बहुत सारे हैं तो इधर हम अभी करते हैं, उसके पहले हम महाराष्ट्र कर लेते हैं. महाराष्ट्र में नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी है. ठीक है, बिल्कुल बीच में है ना अपना महाराष्ट्र ऑलमोस्ट, मतलब तो मध्यमेश्वर, बट इतना ऑब्वियस नहीं कि मध्य प्रदेश कर दो, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश से ली नहीं अभी रिसेंट में कोई रामसर साइट, अभी महाराष्ट्र से ही लिया है. तो नंदुर बाग एक्चुअली अगर पता है तो वो महाराष्ट्र में है, बट नहीं भी पता तो अब याद कर लो. नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ से आई है? अपनी महाराष्ट्र से. नंदुर वाला महाराष्ट्र से. ठीक है, नंदू सबका बंधु मूवी और अब और फिर नंदू वो कहाँ पे सारी मूवीज़ बनती है? महाराष्ट्र में. तो वैसे याद कर लो, नंदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है. ठीक है, देन उत्तर प्रदेश से अब कौन कौन से लिए हैं? अब जो बचे नए नाम वो उत्तर प्रदेश है, बट फिर भी हम करते हैं इसको याद. अब पहले याद रखो नवाबगंज. अब ये लखनऊ के नवाब वगैरह होते ही हैं, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ? यूपी. ठीक है, उसके बाद SS वाले बहुत सारे हैं. ठीक है, SS वाले कौन कौन से? एक तो समान या जो भी नाम है इसका, समन बर्ड सेंचुरी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समान चाहिए ना इधर यूपी वालों को, तो समान. संडी बर्ड सांडी होगा जो भी, या सैंडी होगा पता नहीं, संडी याद कर लो, सांड टाइप्स. ठीक है, तो संडी बर्ड सेंचुरी. देन पार्वती
ओके, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार झील. ओके, सरसई नवार झील. हाउ टू लर्न दिस? सी, नवाबगंज तो याद हो ही गया, लखनऊ के नवाबगंज. अब वो समस दुनिया में, तो समसपुर बर्ड सेंचुरी, नवाब समस, ठीक है. समस क्या, समसपुर बर्ड सेंचुरी. फिर सरसई समान किसको दोगे? पार्वती को. तो समान बर्ड सेंचुरी, पार्वती बर्ड सेंचुरी, इसका कॉम्बिनेशन बना लो द मोमेंट. ओके, नवाब को भी समान देंगे, ठीक है. तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाब की पत्नी कौन? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है. वो किसका कल्याण कर रहे हैं? समस बर्ड सेंचुरी. तो फिर उनको सम्मान देना चाहिए, समास बर्ड सेंचुरी. अब सरसई और संडी, पता नहीं कैसे याद करोगे बट कर लो. अब सरसई, तो उनका सरसई दिमाग सही, सरसई नवार झील एंड संडी बर्ड सेंचुरी. ओके, मैं ऐसे याद करती हूँ, तो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो सरसई और संडी, ठीक है, या सैंडी बर्ड सेंचुरी, व्हाटएवर. ओके, तो आई थिंक अब याद हो गया. दैट आई हैव रिपीटेड इट इनफ टाइम्स. नाउ लेट्स जस्ट डू द डिटेल ऑफ इट. नंदुर मध्यमेश्वर, लाइक वी सेड, इट इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन महाराष्ट्र. तो अभी तक क्या था? अभी तक महाराष्ट्र में कोई रामसर साइट थी ही नहीं, ठीक है. इट्स अ मोज़ैक ऑफ लेक्स, marshes, riparian forest on the Deccan Plateau. Now, the construction of the Nandur Madhyameshwar Veer at the confluence of the Godavari and the Kadwa rivers helped create a thriving wetland. Okay. तो गोदावरी तो पता ही है ना, आ रही है यहाँ पे. तो गोदावरी और एक और कड़वा रिवर है, कड़वा कर लो, कड़वा रिवर एंड गोदावरी रिवर, ठीक है. इनका इधर अपन ने कंस्ट्रक्शन किया किसका? नंदुर मध्यमेश्वर वीर का. सो दैट हैज़ लेड टू अ स्ट्राइविंग. Okay, so what is a weir, by the way? It is actually like a small dam, you can say, which helps to regulate the flow of water. मतलब डैम टाइप, मिनी डैम कह लो, और वो वाटर लेवल को मेंटेन करने में या कम ज़्यादा जैसे भी करना है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है. यू कैन गूगल इट इफ़ यू रियली वांट टू, बट इट्स नॉट नेसेसरी. देन गोदावरी. This is the first Ramsar site in Maharashtra. It's a mosaic of lakes, marshes and riparian forest on the Deccan Plateau. The construction of the Nandur Madhyameshwar Veer, this was done. Okay, next is, I'll actually pause the video. So, it's diverse habitats contrast with the surrounding semi-arid conditions caused by the rain shadow of the Western Ghats mountain range. What does it mean? It's diverse habitats. अब क्या हुआ? नंदुर मध्यमेश्वर हमने एक वहाँ पे वेटलैंड बनवा लिया, और ये फर्स्ट रामसर साइट है महाराष्ट्र की. यहाँ पे डाइवर्स हैबिटेट है. इट कॉन्ट्रास्ट विद द सराउंडिंग सेमी एरिड कंडीशंस कॉज्ड बाय द रेन शैडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. अच्छा, तो क्या होता है? दिस इज़ अ वेटलैंड, बट इसके आसपास सेमी एरिड कंडीशंस हैं. ओके, सो इट्स अ डाइवर्स हैबिटेट, ठीक है. इट कॉन्ट्रास्ट विद द surrounding semi-arid conditions, which is caused by the rain shadow. It falls in the rain shadow area of the Western Ghats mountain range. Now, it provides sanctuary to critically endangered species, including Deolali minnow. It's a fish, okay, Indian vulture and white-rumped vulture. So, critically endangered species है ना, Deolali minnow, which is a minnow, which is a fish. Deolali minnow, which is a fish, Indian vulture and white-rumped vulture के लिए भी it's providing sanctuary. Okay, तो this is about Nandur Madhyameshwar sanctuary, wildlife sanctuary. It's in Maharashtra. In which rivers? कड़वा, गोदावरी. ओके, वहाँ पे वेटलैंड है. बहुत ही आसपास का एरिया सेमी एरिड है. सेमी एरिड मतलब सूखा टाइप्स, ज़्यादा वो नहीं है, और ये बीच में वेटलैंड है. तो इट्स क्वाइट अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है. और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे कि देवलाली मिनाओ, विच इज़ अ फिश. देवलाली मिनाओ इज़ अ फिश, उसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है. उसके अलावा इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर को भी. ना समान बर्ड सेंचुरी, इट्स इन मेनपुरी
UP. It's a seasonal oxbow lake on the Ganges floodplain. The sanctuary is important as a wintering site for many migrants, including the grey lag goose, with over 1% of the South Asian population present during winters. तो समान बर्ड सैंक्चुरी कहाँ पर है? सबसे पहले तो यूपी में है, ठीक है, हमने कहा ना यूपी वालों को सामान देना है, तो समान बर्ड सैंक्चुरी यूपी में है. क्या है? व्हाट इज़ इट? इट्स एन ऑक्सबो लेक. यू अंडरस्टैंड व्हाट्स एन ऑक्सबो लेक? एक रिवर फ्लो कर रही है, उसमें मियांड्रिंग होती है, मियांड्रिंग होते होते धीरे धीरे कट ऑफ हो जाती है रिवर और एक छोटी सी झील बन जाती है उस मियांडर को, ठीक है, तो वो बोलते हैं ऑक्सबो लेक. तो ये जो समान बर्ड सैंक्चुरी है ये सीजनल ऑक्सबो लेक है. और ये क्या है? सीजनल है, परमानेंट नहीं है, सीजनल ऑक्सबो लेक है. किस में? कौन सा रिवर है जो कट ऑफ होके इसको पानी सप्लाई करके लेक बना रही है? गैंजेस, अपनी गंगा, ठीक है. सैंक्चुरी इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? जब ये कट ऑफ होके एक सीजनल ऑक्सबो लेक बना रही है, वहाँ पर आने वाली बर्ड्स होती हैं, विंटरिंग साइट है फॉर मेनी माइग्रेंट, इंक्लूडिंग द ग्रे लैग गूज विद ओवर 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन प्रेजेंट ड्यूरिंग विंटर. उनकी 1% साउथ एशियन पॉपुलेशन सारी की सारी कहाँ आ जाती है? ग्रे लैग गूज की अपना समान बर्ड सैंक्चुरी में, ठीक है, जो कि यूपी में है. बस इतना याद रखना है कि सीजनल ऑक्सबो लेक है, उसके अलावा तो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कौन सी रिवर की ऑक्सबो लेक है? गंगा की, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी. अब ये क्या है? इट इज़ अ शालो मार्शलैंड. ज़्यादा डीप नहीं है, शालो है. मार्शलैंड क्या होते हैं? थोड़ा कीचड़ टाइप, लाइक दलदल. तो ये मानसून रेन्स फीड दिस डाइवर्स वेटलैंड, बट दिस शारदा कैनाल इट सप्लाइज एडिशनल वाटर, ठीक है. कैनाल हम बिल्ड करते हैं ना कि थोड़ा कहीं पे भी पानी भेजना है, भेज पाओ, तो शारदा कैनाल इसको एडिशनल वाटर सप्लाई कर देते हैं. बाकी मानसून में तो रेन होती है तो वो उसको फीड कर देती है, उसको भर देती है. Now the highly invasive common water hyacinth. You've heard of water hyacinth? No, it's a very invasive species. It poses a threat as does the removal of timber from the forest. So this is in a forest. It's a marshland. So marshland basically कीचड़ जहाँ पे दलदल मिट्टी फॉरेस्ट हो गई, ठीक है. तो वहाँ पर क्या है कि टिम्बर हटा रहे हैं फॉरेस्ट से, साथ ही साथ वाटर हाइसेंथ वहाँ काफ़ी ग्रो हो रहे हैं. तो दीज टू आर अ कॉमन थ्रेट, ओके. Third is that it is known to host the Siberian cranes among the migratory bird species that rest here during the winter months, ठीक है. और उधर कौन आ रहा था समान में? हाँ, गूज आ रही थी ना. कौन सी? ग्रे. यस, ठीक है. ग्रे लैग गूज थी जो समान में आ रही थी. और वो तो अपनी ऑक्सबो लेक है. और ये जो नवाबगंज है ये क्या है? ये मार्शलैंड है. और यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आ रही है. ज़्यादा नवाब है और साइबेरियन क्रेन तो ज़्यादा सुना ही होगा, तो वो आ रही है यहाँ पर, ठीक है. तो ये 3 पॉइंट्स है नवाबगंज के. क्या क्या? एक तो शालो मार्शलैंड है, ठीक है. दूसरा और फिर सप्लाई किससे हो रही है इसकी? शालो मार्शलैंड है. पानी कहाँ से भर रहा है? मानसून से भी और शारदा कैनाल से भी. तीसरा आई मीन सेकंड पॉइंट इज़ कि इसकी थ्रेट्स क्या है? तो एक तो वाटर हाइसेंथ इसको थ्रेट कर रहे हैं, एक टिम्बर हटा रहे हो वो थ्रेट कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई ये साइबेरियन क्रेन्स को होस्ट करता है अमंग द माइग्रेटरी बर्ड्स, और वो यहाँ पे रेस्ट करती हैं, बस, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर समासपुर बर्ड सेंचुरी. अभी समासपुर बर्ड सेंचुरी अपनी रायबरेली में है, ठीक है. और ऑब्वियसली यूपी में है. रायबरेली क्यों फेमस है भाई? सोनिया गांधी और ये सब की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है. तो इट्स अ पेरिनियल. अब ये थोड़ा याद रखना, पेरिनियल वो वाली सीजनल ऑक्सबो लेक थी. उसके बाद ये शालो मार्शलैंड था. समासपुर जो है ये पेरिनियल मतलब परमानेंट लो लैंड मार्श टिपिकल ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. इट्स 6 कनेक्टेड लेक. ये मार्शलैंड ही है, ठीक है. और इट्स 6 कनेक्टेड लेक्स आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेन्स, ओके. तो ये भी डिपेंडेंट किस पे है? मानसून रेन्स पे. कौन? समसपुर किस पे डिपेंडेंट है? मानसून लेक. और इसमें 6 कनेक्टेड लेक्स हैं, ठीक है. नाउ द सेंचुरी हार्बर्स थ्रेटन स्पीशीज सच एज द endangered vulture and the Pallas's fish eagle and more than 1% of South Asian population of the vulnerable common pochard, okay. और साउथ एशियन की 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रे लैग गूस की आ रही थी. समान में आ रही थी. समासपुर में किसकी आ रही है? या कौन रहता है? वल्नरेबल कॉमन पॉकर्ड, ओके. पॉकर्ड, पॉचर्ड, आई एम नॉट श्योर कैसे प्रोनाउंस करते हैं.
सो वल्नरेबल कॉमन पोचर्ड की 1% साउथ एशियन पॉपुलेशन यहाँ अपने समासपुर में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मार्शलैंड है। यहाँ पे इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर को भी हम सेव कर रहे हैं। वाइट रम्ड वल्चर कहाँ पे सेव कर रहे थे हम? वाइट रम्ड और एक और थी ना, वाइट रम्ड और कौन सी थी? इंडियन वल्चर नॉर्मल। तो वो हम कहाँ सेव कर रहे थे? वो हम महाराष्ट्र में कर रहे थे, नंदुर मध्यमेश्वर में, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे एक फ़िश भी थी, क्या नाम था फ़िश का? लाली, दियो लाली, क्या दो? दियो लाली मिनाओ, ठीक है। उसको हम सेव कर रहे हैं कहाँ पर? नंदुरबाग में। और अभी हम ये तो वहाँ पे इंडियन वल्चर और वाइट रम्ड वल्चर को सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे किसको कर रहे हैं? समासपुर में किसको कर रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हो? हाँ, समासपुर में इजिप्शियन वाली को कर रहे हैं, ठीक है, इजिप्शियन वल्चर को कर रहे हैं। एंड पलासिस फिश ईगल, इसको भी कर रहे हैं, ओके। सो एंड मोर देन 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल कॉमन पॉकर्ड, ठीक है। अ टॉल ग्रास कॉल्ड सरपत इज़ फाउंड एट इन बंचेस एट एवरी स्पॉट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरपत मतलब दे विल गिव यू ऑल दीज पॉइंट्स एंड दे विल टेल यू ये कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यू हैव टू नो ये सब किसमें? समसपुर में। तो देखो समसपुर, समस्त जनता को निवेदन है, इस तरह से बोलते हैं। तो समसपुर में सब कुछ सारा सारा है, इन द सेंस कि बहुत सारी ग्रास है, हर स्पॉट पे मिल रही है। समसपुर में यू आर फाइंडिंग व्हाट? सरपत, ठीक है। सरपट वट एवर इट इज़ कॉल्ड, एक टॉल ग्रास। फिर समस लेक्स जो है वो समस लेक्स मानसून पे डिपेंडेंट है। सारी की सारी जो 6 लेक्स हैं वो भी मानसून पे इधर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर कॉमन पॉकार्ड की साउथ एशियन, अब ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको भी कुछ लिंक दिमाग में बना सकते हो तो बना लो। और ये लोलैंड मार्श है, ये भी याद रखना है, तो हो ही जाएगा। बट टॉल ग्रास ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हट के बात है, ठीक है। सो टॉल ग्रास कॉल्ड सरपत इज़ फाउंड हियर। अब कहीं ना कहीं सारी की सारी स्पीशीज़ तो बची रही है ना, कहीं इजिप्शियन वल्चर है, तो कहीं वाइट रम्ड वल्चर है, कहीं इंडियन वल्चर है, फिर पलासिस फिश ईगल यहाँ पर आ रही है। तो वो चीज़ें फिर थोड़ा ये है कि मतलब यूपीएससी कम पूछेगी, बट ये सरपत से बना सकती है क्वेश्चन, ठीक है। टॉल ग्रास कॉल्ड सरपत इज़ फाउंड इन द बंचेज एट एवरी स्पॉट, ओके। सैंडी बर्ड सेंचुरी, सैंडी, ठीक है, सैंड टाइप, पता नहीं है बुल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो इट्स अ फ्रेश वाटर मार्श, ये ज़रूरी है हो जाता है, ये भी फ्रेश वाटर मार्श है। ये बाकी सारे भी मार्श थे, ये फ्रेश वाटर मार्श है। वैसे तो सारी है क्योंकि गंगा ही बना रही हैं, तो चलो वो तो कोई इतनी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो इट्स ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अच्छा ये चीज़ें इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। सो इट्स अ फ्रेश वाटर मार्श विच इज़ डेजिग्नेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनली इसको अच्छा माना गया है। तो ये क्या है? ये संडी जो है, ये सैंडी जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ रामसर साइट बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। इसको 2 डेजिग्नेशंस मिल गई है ना। Now it's also known by its ancient name देहर झील। झील मतलब तो लेक होते हैं, और देहर झील इसका नाम है। किसका? संडी का। संडी का नाम क्या है? दहर झील, ओके ना। रिवर कौन है? रिवर गर्रा विच इज़ फॉर्मली नोन एज गरुण गंगा, ओके। गरुण गंगा passes near the सेंचुरी, ये भी यार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर गर्रा विच इज़ ऑल्सो नोन एज गरुण गंगा, इट passes near the सेंचुरी। सो गर्रा गरुण, ठीक है, गरुण गंगा, या इसका नाम है रिवर गर्रा। ये कौन सी सेंचुरी के पास से जा रही है? संडी, ठीक है। तो ये जो गरुण गंगा ये बहुत संडी है, ठीक है, बहुत खाती है संडी संडी बर्ड सेंचुरी। और इसको पहले एंशेंट ज़माने में देहर झील भी बोलते थे। ये 2 उपाधियाँ, 2 designations it has. One is that it is also known as obviously it's a Ramsar site, that's what we are studying, and it is also an important bird area by the BirdLife International, okay. It's home to 1% of the South Asian population of common teal, red-crested pockard and ferruginous duck, while vulnerable Sarus crane has a Siberian crane कहाँ आ रही थी? वो आ रही है साइबेरियन क्रेन, थोड़ी नवाब है तो वो नवाबगंज में आ रही है, ठीक है। और ये जो सारस क्रेन है ये कहाँ पे आ रही है? ये आ रही है
सारस क्रेन आ रही है संडी में, ठीक है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स इन दिस सेंचुरी। उसके अलावा टील या रेड क्रेस्टेड पॉकेट भी यहाँ पे आ रहे हैं, और वो जो कॉमन पॉकेट था वो उधर जा रहा था अपना समसपुर में। समस है ना, सारे के सारे लोग, तो कॉमन चीज़ वहाँ पे हो रही है, कॉमन पॉकेट वहाँ पे था। लेकिन यहाँ पर कौन आ रहे हैं, यहाँ पे रेड क्रेस्टेड आ रहे हैं संडी में, ओके। सो सांड को रेड कलर दिखाओ तो वो अटैक करती है ना, तो रेड क्रेस्टेड पॉकेट यहीं पे अट्रैक्ट हो रहा है संडी में, ठीक है। फेरुजिनस डक while vulnerable Sarus crane has a population of 200 individuals within the sanctuary. Now the sanctuary dried out leading to a subsequent collapse in waterbird population from 2014 to 15. अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी ये, तो ये सारी वाटर बर्ड्स एकदम ख़त्म हो गए फ्रॉम 2014 टू 15, फिर ऑब्वियसली इसका रिवाइव किया गया होगा, ओके। वी विल रिवाइज, अभी मैं अभी भी बोल देती हूँ, चलो। तो संडी बर्ड सेंचुरी में क्या क्या पड़ा, सबसे पहले तो ये क्या है, ये फ्रेश वाटर मार्श है, ठीक है। सेकेंड चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह भी डेजिग्नेट हुई है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। थर्ड चीज़, इसका एंशिएंट नाम था दहेर झील, तो इसको अभी भी वो बोला जाता है। और इसमें रिवर फ्लो हो रही है, रिवर गरुण गंगा, जिसको रिवर गर्रा भी बोलते हैं। और बेसिकली इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। सारस क्रेन उनमें से मेन वाली जो वल्नरेबल है सारस क्रेन, तो वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 की पॉपुलेशन है उसकी इन दिस संडी। एंड उसके अलावा पॉकेट कौन सा है, रेड क्रेस्टेड पॉकेट, टील, इन सब की 1% ऑफ द साउथ एशियन पॉपुलेशन है। और यहाँ पर डक भी मिलती है जिसका नाम है फेरुजिनस डक, ठीक है। आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट संडी बर्ड सेंचुरी, ओके। एंड समसपुर का क्या था, टेल मी। समसपुर सब तो 6 लेक्स डिपेंडेंट ऑन मानसून। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चैनल भी दे रहे थे हम, कौन सा चैनल था वो, शारदा, ठीक है। उसके अलावा समसपुर में क्या था, कॉमन पॉकेट, उसको हम वहाँ पे बचा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे हर जगह एक ग्रास मिलती है, समस जगह पे सरपत ग्रास है वो, ठीक है, उसके बंचेस मिलते हैं एट एवरी स्पॉट, ठीक है। और 6 कनेक्टेड लेक्स हो गई, और ये भी मार्शलैंड है, पेरिनियल है, ठीक है। ये था समसपुर। अब बांधवगढ़, इससे पहले सॉरी इससे पहले नवाबगंज पड़ा था। नवाबगंज में क्या पड़ा था कि वहाँ पर कौन आते हैं, साइबेरियन क्रेन आती है नवाबों वाली। और ये क्या है, शैलो मार्शलैंड है ये भी। और यार मैंने गलत बोल दिया, शारदा कैनाल जो है वो नवाबगंज को फीड कर रहा है, सॉरी। समसपुर वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन मानसून। अच्छा हाँ, कह रहा था ना कि समस लेक समस रेन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो समसपुर ओनली डिपेंडेंट ऑन लेक। और ये शारदा कैनाल जो है इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ नवाबगंज को देंगे ना, वो नवाब है तो उधर दे रहे हैं, कैनाल का सप्लाई कर रहे हैं एडिशनल पानी को। और फिर वहाँ पे लेकिन फिर भी वो वाटर हाइसिंथ आ गया और टिम्बर विम्बर आ गया, तो गड़बड़ हो रही है। और साइबेरियन क्रेन्स वहीं आ रहे हैं, बस शैलो मार्शलैंड है। तो ये नवाबगंज है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। शारदा इज़ इन नवाबगंज, ओके। उसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, समान। तो समान क्या, गंगा से ऑक्सबो लेक बन रही है, सीजनल है, और वहाँ पे ग्रे लैग गूज की 1% पॉपुलेशन मिलती है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनेगा तो शायद मेरे हिसाब से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो अभी पढ़ा था हमने, संडी बर्ड सेंचुरी, हारदोई यूपी में है, ठीक है। क्योंकि रिवर भी आ रही है ना, रिवर गंगा, गरुण, और वो भी वैसे इंपॉर्टेंट है नंदुर वाला, क्योंकि उसमें भी 2 रिवर्स आ रही हैं, कौन सी, गोदावरी और कड़वा जो भी होगा नाम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पार्वती, ये यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस, तभी लर्न होगा यार, वरना ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो जाता है। बट अब भी 2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, और कुछ फालतू की कहानियाँ बनाओगे तो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज, ठीक है ना। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। सो इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सबो लेक्स है, परमानेंट है। दे आर रेन फेड लेक्स इन अ डीप नेचुरल डिप्रेशन इन द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ द टेराई region of Uttar Pradesh. The sanctuary is a refuge for some of India's threatened vulture species, Concurrency, critically endangered white-rumped vulture and Indian vulture and Egyptian vulture. They have all been recorded. तो ये भी बढ़िया है। पार्वती
में सब लोग जा रही हैं, सारी बर्ड्स जा रही हैं, वाइट राम्ड हो गई, इंडियन, इजिप्शियन, कोई भेदभाव नहीं है, सारी वल्चर्स आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये इजी है याद रखना, पार्वती में सारी वल्चर्स आपको मिल रही हैं। फिर इन्वेसिव स्पीशीज सच एज वाटर हाइसिंथ अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रेजेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट। सो इसमें सबके पॉइंट्स ही आपको देखो, सबके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। मतलब परमानेंट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, वो जो पहला पढ़ा था उसका ऑक्सबो लेक वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, पर ये परमानेंट है, फ्रेश वाटर है। फिर रेन फेड मानसून, पूरी तरह मानसून डिपेंडेंट कौन थी, समसपुर, तो ये भी रेन फेड है, ठीक है। इन द डीप डिप्रेशन, वो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी, गरुण गंगा या गर्रा, तो उसका वो ये मतलब खैर गैंजेटिक प्लेन्स में सारी हैं, तो ये भी तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में है। फिर इसमें सारी की सारी वल्चर्स आ रही हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, इजिप्शियन, वाइट राम्ड इंडियन, और वाटर हाइसिंथ जो है वो इसके लिए थ्रेड भी है। वो और किसके लिए थ्रेड था, नवाबगंज के लिए, ठीक है। अब आई थिंक लास्ट ऑफ यूपी, सरसई नवार झील। Now, this typical wetland of the Indo-Gangetic Plain in Uttar Pradesh is fed by precipitation runoff from southwest monsoon rain. तो ये भी रेन फेड है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, या सारे ही साउथ वेस्ट मानसून ही जाता है अपना यूपी में, तो उससे ये भी है इंडो गेंजेटिक फ्लड प्लेन में है इन उत्तर प्रदेश। ना इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड वाइल्ड लाइफ। फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस मोस्ट ऑफ द साइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सस्टेनिंग द वाटर बर्ड हैबिटेट्स। एक्चुअली यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उससे वाटर बर्ड हैबिटेट्स बच रहे हैं, सो इट्स लाइक कोहैबिटेशन ऑफ द ह्यूमन्स एंड द वाइल्ड लाइफ, ओके। तो ये रेयर एग्जाम्पल है सरसई नवार झील, ठीक है। सरसई नवार झील में क्या बढ़िया चीज़ दिख रही है कि कोहैबिटेशन हो रहे हैं ऑफ ह्यूमंस एंड द वाटर बर्ड पॉपुलेशन। नाउ पर्टिकुलर बेनिफिशियरी इज द वल्नरेबल सारस क्रेन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल्स मेकिंग अप द लार्जेस्ट फ्लॉक इन द रीजन। Other threatened species which are present, they include the critically endangered white-rumped vulture and the endangered woolly-necked stork. It is also recognized as an important bird area by BirdLife International. तो अभी तक दो पढ़े ना हमने important bird area by BirdLife International, कौन सा, एक तो संडी और दूसरा कौन सा, सरसई, ठीक है। तो ये आई थिंक याद रखना ज़रूरी है, इन दोनों को important bird एरिया माना गया है, सरसई जिसका है उसको और संडी को, ठीक है। तो संडी ने संडी एंड सरसई, ओके, सैंडी यार, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व विच इज़ इन पंजाब. It is 185 kilometer stretch of the Beas River, majorly in Punjab. The river is dotted with islands, sandbars, and braided channels, creating a complex environment supporting substantial biodiversity. The reserve hosts the only known population in India of the endangered Indus River dolphin. अब ये तो important हो ही जाता है, तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है पहली चीज़। ये 185 किलोमीटर स्ट्रेच है किसमें, ब्यास रिवर में, ठीक है। वो कहाँ पर है, मेजरली पंजाब में है, ठीक है। एक्चुअली देखो ब्यास रिवर इज़ द ओनली इंडस की ब्रांच जो कम्प्लीटली इंडिया में है, और अब ये मेजरली पंजाब में है, ठीक है। रिवर इज़ डॉटेड विद आइलैंड्स, अब रिवर के अंदर ही छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं, सैंड बार्स एंड ब्रेडेड चैनल्स, ओके, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट सपोर्टिंग सब्सटैंशियल, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि रिवर के मतलब रिवर के अंदर ही छोटे छोटे आइलैंड बन रहे हैं मिट्टी विट्टी से, और सैंड बार्स हैं और ब्रेडेड चैनल्स, मतलब बीच बीच में से आइलैंड फिर पानी, फिर आइलैंड फिर पानी, जैसे ब्रेड्स बनाते हो ना उस तरह से। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। द रिजर्व्स होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स ना, मतलब एक एक्चुअली देयर 4 टाइप्स, बट एक जो ये गंगा और इंडस वाली है, याद रखो, गंगा रिवर डॉल्फिन भी है और इंडस रिवर डॉल्फिन भी है। तो जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, क्या ये इंडिया में मिलती है? हाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्यास में मिलती है, ठीक है। तो गंगा तो हर जगह ही मिलती है, इनफैक्ट आई टोल्ड यू, गंगा तो गंगा में भी मिलती है, ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है, ठीक है, इनकी साइड ट्रिब्यूटरीज में। लेकिन ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, ये आपको केवल और केवल कहाँ मिल रही है? यहीं पर। तो दिस मेक्स द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो द रिजर्व होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया ऑफ द endangered इंडस रिवर डॉल्फिन. Further threatened species include the endangered mahseer and hog deer, as well as the vulnerable smooth-coated otter. ये सब न्यूज़ में रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है। मशीर क्या है? मशीर आई थिंक ब्लाइंड फिश की स्पीशीज़ है शायद। सो मशीर, हॉग डियर और क्या ये वल्नरेबल स्मूथ कोटेड ऑटर।
ऑटर भी बहुत न्यूज़ में रहा है, स्मूथ कोटेड ऑटर. तो दे आर ऑल फाउंड इन योर ब्यास यही अपना ब्यास वेटलैंड. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्यास वेटलैंड अलग से भी विकीपीडिया पे पढ़ लो. सो प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल भी डालना चाहते हैं. तो इसकी क्या क्या खासियत है, चलो ब्यास आई विल रिपीट. सबसे पहले ये क्या है, ये एक स्ट्रेच ऑफ रिवर है, ठीक है, ब्यास रिवर है, जो कि मोस्टली पंजाब में ही है. बहुत सारे ऐसे ब्रेडेड चैनल्स वगैरह हैं, तो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है. इट होज द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन यहीं पे मिलती है, केवल और केवल. उसके अलावा मशीर, हॉगडेयर और जैसे वल्नरेबल और वल्नरेबल स्मूथ कोटेड ऑटर भी यहाँ मिल जाता है. और इन सब के अलावा यहाँ पे प्लान है कि हम जो मतलब पहले यहाँ घड़ियाल होता था, अब घड़ियाल नहीं है, तो हम यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करेंगे द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल एज वेल. ओके. Now next is the Nangal. So next is the Nangal Wildlife Sanctuary. Nangal Wildlife Sanctuary कहाँ है, पंजाब में ही है, located in the Shivalik foothills of Punjab, which is highly eco-sensitive. It occupies a human-made reservoir construction as part of the Bhakra Nangal project on the Satluj River. ठीक है. आई टोल्ड यू नो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना था सतलुज रिवर में 1961. तो इट ऑक्यूपाइज अ ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर, ठीक है, लोकेटेड कहाँ, शिवालिक फुट हिल्स ऑफ द पंजाब, विच इज़ हाईली इको सेंसिटिव. द साइट इज़ ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस एज द इंडियन एंड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. पंचशील जो है वो यहीं पर इन्होंने साइन किया था नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास. तो इसलिए इट हैज़ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस. ओके. Now next is your Keshopur Miani Community Reserve. It is a mosaic of natural. So next is the Keshopur Miani Community Reserve, which is in Punjab. Okay, like Nangal and like Beas. Now Keshopur Miani is a mosaic of natural marshes, aquaculture ponds and agricultural wetlands maintained by the annual rainfall runoff. Okay, so it's heavily human influenced and includes a series of managed fish ponds and cultivated crops such as lotus and chestnut. The site is an example of the wise use of a community managed wetland which provides food for the people and supports local biodiversity. ठीक है. तो बेसिकली इसमें हाईलाइट क्या है कि ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन मैनेज्ड है और काफ़ी वाइज यूज़ जो हम चाहते हैं कि वेटलैंड्स में हो, विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर साइट. तो वाइज यूज़ ऑफ अ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड इधर नज़र आ रहा है. कौन से में, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व. इट इज़ अ कम्युनिटी रिजर्व. ओके. We have previously done what is a community reserve which is owned by the community. Now the threatened species present include the vulnerable common pocket and the endangered spotted pond turtle. ठीक है, pocket and the pond turtle. About Ramsar Convention, what is Ramsar Convention? So this is a city in Iran, right? So it's an intergovernmental treaty which provides a framework for the conservation and the wise use of all wetlands. हमने बोला ना wise use, so wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation. Okay, so the convention signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar is one of the oldest intergovernmental accord for preserving the ecological character of wetlands. Under the 3 pillars of the convention we have the contracting parties. they commit to क्या 3 pillars हैं इसके. उसमें contract जो जिन्होंने भी रामसर कन्वेंशन को साइन किया है, they commit to 3 things which is work towards wise use of all wetlands. तो ये कौन खरा उतर रहा है वाइज यूज़ पे, बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस, केशवपुर मियानी. ठीक है. डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज़ द रामसर लिस्ट, एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो यही हुआ है. अभी ये जो 10 और ऐड हुए हैं, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. Third is cooperate internationally on transboundary wetlands, shared wetland systems and shared species. ठीक है. How many parties are there? 171. ठीक है.
सो 1971 में साइन हुई थी, 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है, कोई पूछेगा नहीं पर चलो याद रखना है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट. It is a register of wetland sites where the changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution, or other human interference. Currently, 2 Indian lakes, namely the Loktak Lake and the Keladeo National Park, are in Montreux record. Where is Loktak Lake? Manipur. Where is Keladeo National Park? Rajasthan. Now, the Ramsar site has 6 international organization partners. ये important हो जाते हैं. कौन कौन है? वन इज़ योर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. अभी हम पढ़ ही रहे थे ना, वो जनरली सारे बर्ड लाइफ वाले भी होते ही हैं. कौन कौन थे वैसे? सरसई था और संडी था, ठीक है. और IUCN भी है इनका पार्टनर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. फिर एक वेटलैंड्स इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी है, ठीक है. तो याद रखना, मतलब रामसर कन्वेंशन ऐसा कुछ इनमें आ नहीं रही है, सब पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं. वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, ठीक है. देखो IUCN, WWF, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये सब कॉमन है. फिर वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्योंकि वेटलैंड है, उसके अलावा वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट भी है, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है. नाउ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नीचे आ जाओ. सुंदरबन मैनग्रोव्स. The Sundarban mangrove forest, one of the largest such forests in the world, that is of 1,40,000 hectares. It lies on the delta of the Ganga, Brahmaputra and the Meghna rivers on the Bay of Bengal. Sundarban is a World Heritage Site inscribed in 1987. World Heritage Site है ये. फिर क्या ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है? जी हाँ, 2019 में इंडियन साइट ऑफ सुंदरबन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टैग अंडर द रामसर कन्वेंशन. ओके, सो मतलब मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में 2019 में वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको भी मिला. ओके, नाउ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स. अब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारी मिनिस्ट्री ने, दे हैव नोटिफाइड सम गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017. सो लेट अस फर्स्ट नो द बैकग्राउंड बिहाइंड इट. सो MEO अपना ये जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट वाली, इट हैज़ नोटिफाइड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. तो रूल्स आए हैं, कोई एक्ट नहीं आया, रूल्स आए हैं. और रूल्स किसके अंडर आए हैं? रूल्स आए हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है. प्लीज़ ये याद रखो. ये रूल्स किसके अंडर आए हैं? वेटलैंड्स वाले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर आए हैं एज ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया. द प्रेजेंट गाइडलाइंस हैव बीन ड्राफ्टेड टू सपोर्ट the state governments, the union territory administrations in the implementation of the rules. Features of the guidelines क्या है? Wetlands to be regulated. Now the wetlands designated to the list of wetlands of international importance under the Ramsar site. Okay, firstly it is saying कि क्या बोला है कि भाई प्रेजेंट गाइडलाइंस हैव बीन ड्राफ्टेड टू सपोर्ट द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, ठीक है. और हमने क्या रूल्स को किसके अंदर लाए हैं? हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लाए हैं, और हम उनको हेल्प करने के लिए लेके आए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और UT के गवर्नमेंट्स को. अब क्या गाइडलाइंस है? तो सबसे पहले तो भाई वेटलैंड्स टू बी रेगुलेटेड. कौन से वेटलैंड्स हैं जिनको हम एक्चुअली रेगुलेट कर रहे हैं इसके अंडर? तो वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड टू द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है. देन सेकंड इज वेटलैंड्स नोटिफाइड अंडर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द UT एडमिनिस्ट्रेशन. थर्ड इज ऑल वेटलैंड्स irrespective of their location, size, ownership, biodiversity or ecosystem service values can be notified under the wetlands rules except the river channels, paddy fields. Okay, I'll repeat this. Wetlands designated to the list of wetlands of international importance under the Ramsar site, ठीक है. जो उनमें आ रहे हैं वो तो है ही है, मतलब रामसर लिस्ट तो है ही है जिसके लिए ये रूल्स लागू होते हैं. देन वेटलैंड्स नोटिफाइड अंडर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT के, इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये सब वेटलैंड्स हैं तो उनके लिए भी. देन ऑल वेटलैंड्स irrespective of their location, size, ownership, biodiversity or ecosystem service values can be notified under the wetland rule except river channels. Okay, सबको कर सकते हो notify except river channels, paddy fields and certain categories of human made water bodies among others. Okay,
तो अभी ब्रॉडली क्या याद रखना है कि पैडी फील्ड्स या फिर मतलब राइस के खेत जो हैं उनको, या फिर रिवर चैनल, अच्छी खासी रिवर जा रही है उसके चैनल को आप वेटलैंड बना दो और बोले ये रूल एप्लीकेबल है और ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शंस है, और इसके अलावा भी कुछ ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हैव बीन मेड एक्सेप्शंस. Protected areas and areas falling within the purview of the coastal regulation, coastal zone regulation, have been excluded from notification under the wetland rules. तो 3 एक्सेप्शंस है, मतलब पैडी फील्ड्स एक्सेप्शन है, रिवर चैनल्स एक्सेप्शन है, और जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज लेबल करे ना अंडर द पर्व्यू ऑफ द कोस्टल जोन रेगुलेशन CZR, वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे वेटलैंड रूल से, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई, तो पहले रूल्स किस पे लागू हो रहे हैं हमने उसकी बात कर ली, और मतलब सब पे लागू हो रहे हैं सिवाय 3 चीज़ों के, इनफैक्ट 4 चीज़ों के। कौन है वो 4 चीज़ें? एक तो रिवर चैनल्स, दूसरा पैडी फील्ड्स, कुछ पैडी फील्ड्स, तीसरा आपके ये जो हमने नोटिफाई किए हैं कोस्टल जोन रेगुलेशन में एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़, उनमें भी नहीं हो रहे, एंड चौथा जो भी ह्यूमन मेड कुछ होते हैं, नॉट ऑल बट कुछ ह्यूमन मेड, some certain categories of human made water bodies, ठीक है। अब वेटलैंड अथॉरिटीज़ की बात करेंगे। वेटलैंड अथॉरिटीज़ जैसे कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई है इसमें हमने, सो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द एनवायरनमेंट इन द स्टेट विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ सेक्रेटरी वुड बी द चेयरपर्सन इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट में मिनिस्टर्स होते हैं, अब कौन सा मिनिस्टर होगा? जो भी मिनिस्टर इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट वो बनेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर चीफ सेक्रेटरी को बना देंगे चेयरपर्सन ऑफ व्हाट, ऑफ द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी. It has a diverse membership with experts also from wetland ecology, hydrology, etc. Now, each wetlands authority shall constitute a technical committee to review the brief documents, management plans. Okay. Now, technical committee. Okay, sorry. Now, coming back, each wetland authority shall consist of. So, we just talked about the state wetland authority. The minister in charge of the environment in the state will act as the chairperson. अगर यूनियन टेरिटरी है तो जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा. अब इसमें इट विल हैव अ डाइवर्स मेंबरशिप विद एक्सपर्ट्स ऑल्सो फ्रॉम द वेटलैंड इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एक्सेट्रा. ईच वेटलैंड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट. अब वेटलैंड अथॉरिटी में ही कमिटीज़ होंगी, तो एक होगी टेक्निकल कमिटी विच विल रिव्यू द ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिलेटेड, मैनेजमेंट प्लान क्या है उसको करने का, एंड एडवाइज ऑन एनी टेक्निकल मैटर रेफर्ड बाय द वेटलैंड्स अथॉरिटी. ओके. Then it will also constitute a grievance committee which will consist of 4 members, okay, and to provide the mechanism for hearing and forwarding the grievances that are raised by the public to the authority, ठीक है. whatever grievances people have, they will be able to convey to the grievance authority. It will have 4 members and there will be a technical committee, and this is about a wetlands authority जिसका head कौन होगा? The chairperson will be the minister of state for environment in that. Now preparing a list of wetlands. What are we discussing? We are discussing the wetland rules. तो अभी तक हमने क्या किया? हमने अथॉरिटी और किसके ऊपर ये रूल्स लागू होंगे, ठीक है. अब हम कर रहे हैं प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स. सो द लिस्ट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन वेटलैंड्स डेफिनेशन, ओके, ऑफ द रामसर कन्वेंशन. तो वेटलैंड की कुछ डेफिनेशन है इन द रामसर कन्वेंशन, तो वो डेफिनेशन के बेसिस पे वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड्स. नाउ द कन्वेंशन रैटिफाइड बाय इंडिया डिफाइंस वेटलैंड एज एरियाज ऑफ मार्श, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tides does not exceed 6 meters. So the depth of which at low tide should not exceed 6 meters. What is it? It is a area of either marsh, fen, peatland or water. It can be natural or artificial. It can be permanent or temporary. It can be with water that is salty, brackish और क्या क्या हो सकते हैं? salty, brackish और fresh, है ना. और वेदर इट इज स्टैटिक और फ्लोइंग कुछ भी हो सकते हैं.
या फिर इट माइट इंक्लूड एरियाज ऑफ मरीन वाटर ऑल्सो। पहले उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? एट लो टाइड्स द डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 6 meters. These are your wetlands. Okay, this is the definition of wetlands and we have adopted the same definition. Now delineating wetlands. For each wetland to be notified, a zone of influence is to be defined. So the zone of influence of a wetland, अब हमने अपने उसमें we have defined a zone of influence. So zone of influence of a wetland of a wetland ecosystem. One second. Zone of influence of a wetland is an area developmental activities wherein are likely to induce adverse changes in the wetland ecosystem structure and ecological functioning. ठीक है. So what is so we are delineating the wetlands means we are creating a zone of influence. ठीक है. जो क्या होती है, इट इज़ एन एरिया जहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी तो दैट विल इंड्यूस एडवर्स चेंजेस इन द वेटलैंड इकोसिस्टम, उसका स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल फंक्शनिंग. ठीक है. सो उस एरिया में वी विल नॉट हैव एनी any developmental activities. Now wetlands wise use and ecological character. Okay, is this clear? What have we done? We have defined the wetlands. Now we are delineating the wetlands, means we are notifying a zone of influence. Next what we are doing, we are talking about the wetlands wise use and ecological character. So management of notified wetlands is recommended to be based on the wise use approach. Ramsar Convention defines the wise use of wetlands as the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development. Now, what are the prohibited activities? The conversion of wetland, including the encroachment of any kind. So now we have talked about wetlands wise use and ecological character. मतलब management of notified wetlands जो है इट इज़ रिकमेंडेड टू बी बेस्ड ऑन द वाइज यूज अप्रोच, जो ऑलरेडी बात हो गई थी रामसर कन्वेंशन में. यानी कि मेंटेनेंस क्या है वाइज यूज़, कि भाई मेंटेन होना चाहिए उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर विच इज़ अचीव थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम अप्रोचेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो काफ़ी भारी शब्द हैं. मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर अचीव थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोचेस. कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम? इकोसिस्टम अप्रोचेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऐसी इकोसिस्टम अप्रोचेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ना प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज. सो फाइनली वी आर कमिंग टू prohibited activities. Now conversion of wetland including the encroachment of any kind, setting up of any industry and expansion of existing industries. Okay, so conversion of wetland is prohibited, including the encroachment of any kind, setting up of any industry and expansion of existing industries, solid waste dumping, discharge of untreated waste and effluents from industries, poaching, ये सब wetland में permitted नहीं है. ये सब क्या है? prohibited activities है. Now permission for carrying out any prohibited activity within a notified wetland can only be given by the ministry upon a specific request made by the state government based on the recommendation of wetlands authority. मतलब कितना लंबा प्रोसेस है, समझ में आया? मतलब अगर परमिशन देनी है कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी वहाँ करने के लिए तो परमिशन कौन देगी? मिनिस्ट्री देगी. मिनिस्ट्री कब परमिशन देगी? जब वेटलैंड अथॉरिटी रेकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि रिक्वेस्ट करेगी मिनिस्ट्री को. समझ आ गई? वेटलैंड अथॉरिटी को ये वेटलैंड अथॉरिटी बोलेगी, रेकमेंड करेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी मिनिस्ट्री को, तब जाके परमिशन मिलेगी. ठीक है. अब ये हो गई प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़. उसके बाद होती हैं कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़. रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ क्या? सब्सिस्टेंस लेवल बायोमास हार्वेस्टिंग, मतलब जो आपको बस जीने के लिए चाहिए, सब्सिस्टेंस बेसिक लेवल बायोमास हार्वेस्टिंग. ठीक है. दैट इज़ इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल कल्चर, फिशरीज प्रैक्टिसेस, फ्लाइंग ऑफ नॉन मोटराइज्ड बोट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी नेचर. तो इन टाइप की चीज़ें, ये सब रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है. तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, कर सकते हो, पर रेगुलेशन होगी कि बिल्कुल कैसे हो रही है ये. तो नॉन मोटराइज्ड बोट्स, कैन वी प्लाई देम ऑन द वेटलैंड्स? येस. कैन वी कंस्ट्रक्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स? येस. Can we have sustainable culture fisheries there? Can we culture the fisheries also? Yes, we can. Do we have some biomass harvesting activity there? Yes, you can. Okay. Now the account of pre-existing rights and privileges is in a notified wetland. So each wetland is likely to be associated with a range of pre-existing rights and privileges, and it must be ensured that such rights and privileges are aligned with the wise use approach. Okay.
हर एक वेटलैंड अकाउंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस इन अ नोटिफाइड, अब पहले भी हमने नोटिफाई कर दिया है वेटलैंड, है ना, तो ईच वेटलैंड में हो सकता है इट इज़ लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे कुछ लोगों के, तो उन सबको इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर अलाइंड विद द वाइज यूज अप्रोच। आपने कुछ लोगों को दिया हुआ है, बिकॉज यू नो वेटलैंड्स कैन बी वॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मे नॉट बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उनकी डेफिनेशन में हर टाइप के वेटलैंड्स आ रहे हैं, तो जो उनको प्री एग्जिस्टिंग राइट्स है किसी कम्युनिटी को या किसी इंसान को कुछ भी, तो दे शुड बी अलाइंड विद द वाइज यूज अप्रोच, ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखना है। अब हमने इतने सारे रूल्स बना लिए, फाइनली हमें क्या चाहिए होगा, वायलेशंस होगी, तो तब पीनल प्रोविजंस क्या है। सो द वायलेशंस ऑफ द वेटलैंड्स रूल शैल अट्रैक्ट द पीनल प्रोविजन एज पर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, क्योंकि ये रूल भी उसी एक्ट के अंदर आए हैं। सेकेंड है, नाउ नेक्स्ट इज पोर्टल फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। अब सब कुछ हो गया, अब सारी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट एक क्रिएट होगी, हैज़ क्रिएटेड अ वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेटलैंड रूल। फाइनली ये सब कहानियाँ थी, हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी का। अब हमने आ रही है एक और होगी नेशनल वेटलैंड्स कमेटी। तो सेंट्रल वेटलैंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी रिप्लेस्ड विद द कमिटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। तो स्टेट वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वैसे ही एक सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, अब उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी की जगह हमने नेशनल वेटलैंड्स कमेटी बना दी है। तो प्लीज़ रिमेंबर, अथॉरिटी से क्या बन गई है, कमेटी बन गई है। क्या नाम रखा, पहले सेंट्रल था अब नेशनल हो गया, नेशनल वेटलैंड्स कमेटी बना दी है, विच so it will replace, ये national wetland committee will replace the central wetlands regulatory authority with this committee to monitor the implementation of the rules. Is this clear? Okay, so I think it was more or less, तो पर state का है, state wetland authority है हमारे पास, है ना, अभी पढ़ी भी थी हमने state wetlands authority. Now next what we have is activities under the wise use. So you see ecological rehabilitation and rewilding of nature, कुछ इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, रीवाइल्डिंग ऑफ नेचर, वेटलैंड्स इन्वेंट्री असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, कोई रिसर्च करनी है वो भी अलाउड है, कम्युनिकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, मैनेजमेंट प्लानिंग इज अलाउड, हैबिटेट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज इज अलाउड, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म इज अलाउड, ओके, वेटलैंड्स इन्वेंट्री असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च, इकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एंड रीवाइल्डिंग ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें अलाउड है। What is the functions of the state wetland authority? See, it will prepare a list of all the wetlands of the state or the UT. Develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence. Define the strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction. Next is coordinate implementation of the integrated management plans based on the wise use. अब जो पहले तो डिफाइन करेंगे strategies for conservation and wise use, फिर वो strategies डिफाइन हो गई, अब coordinate करेंगे उनकी implementation, ठीक है, implementation of the integrated management plans based on the wise use principle. फिर क्या, function as a nodal authority for all the wetland specific authorities within the state या फिर union territory. Okay, now Kabir onwards we will do in the next session, already बहुत लंबा हो गया ये तो.